فرینڈز گرینڈ الائنس میں کانٹے کا مقابلہ، صدارتی نشست پر ارشد انصاری، مجید ساجد، بابر ڈوگر مد مقابل۔ پولنگ 6 بجے تک جاری رہے گی۔ سبزی منڈی میں مہنگائی کا راج، سرکاری لسٹ میں 12 سبزیاں مہنگی، پیاز 32 کی بجائے 50 روپے، ٹماٹر 140، لہسن دیسی 330 روپے فی کلو میں فروخت۔ مہنگائی سے عوام شدید پریشان۔ نئے پاکستان میں برالر گوشت کھانا بھی خواب بن گیا، زندہ مرغی 262 روپے میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ، شہریوں کا اعلی حکام سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں دھند کے بادل چھٹنے لگے، سردی کی شدت برقرار، موٹر وے بھی جزوی طور پر کھول دی گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ دھند کے باعث زمینی اور فضائی سفر کرنا محال، کئی پروازیں منسوخ، متعدد کا رخ موڑ دیا گیا، ٹرینز کا شیڈول بھی بری طرح متاثر، لاہور سے مختلف شہروں کو جانے اور آنے والی متعدد ٹرینز تاخیر کا شکار۔ گلگت بلتستان میں ہیلی کاپٹر کا افسوسناک حادثہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے پر دلی دکھ اور رنج کا اظہار۔ عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت کی تمام تر ہمدردیاں شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے۔ یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں ملے گا۔ یہ حکومت ہی دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے، حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا۔ مذاکرات ہوں گے نہ، پی ڈی ایم این آر او دے گی، جعلی حکومت جو مرضی کر لے اسے گھر جانا پڑے گا۔ مریم نواز کا دبنگ اعلان، کہا شہباز شریف بھائی کے وفادار نہ ہوتے تو آج وزیر اعظم ہوتے۔ پی ڈی ایم جلسوں سے ورکرز کنونشنز پر آ گئی ہے، مریم کے مفرور والد کی سیاست ہر روز سکڑ رہی ہے، شریف فیملی کی لوٹ مار کے زخم عوام کبھی نہیں بھولیں گے، ڈاکٹر فردوس عاشق آبان کا مریم نواز کے خطاب پر رد عمل۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر برقرار، عوام بیماریوں کا شکار، تعفن پھیلنے سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے باوجود لاہور مکمل طور پر صاف نہیں ہو سکا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شہر میں زیرو ویسٹ آپریشن، اب تک 18,000 ٹن سے زائد کوڑا اٹھایا جا چکا۔ ڈی سی مدثر ریاض کا چائنا چوک کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو دہشت گردوں نے بے نظیر بھٹو کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں پہلی بار غیر ملکی کھلاڑی جلوہ گر، ایرون سمرز کو پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے فرسٹ غیر ملکی کھلاڑی بننے کا اعزاز حاصل۔ پاکستان کپ میں جنوبی پنجاب کی ٹیم کی نمائندگی مل گئی۔ اور صدر کسٹم کلیئرنگ ایسوسی ایشن لاہور آغا افتخار کی بیٹی پیا گھر سدھار گئیں، شادی کی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت عزیز و اقارب نے بھرپور شرکت کی۔ السلام علیکم، بج گئے 12 کے خصوصی بلٹن کے ساتھ میں ہوں سامع غیور اختر اور میں ہوں سارہ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب کے انتخابات کا دنگل سج گیا ہے۔ جرنلسٹ پینل، پروگریسو پینل، فرینڈز گرینڈ الائنس میں کانٹے کا مقابلہ جاری ہے۔ صدارتی نشست پر ارشد انصاری، عبدالمجید ساجد، بابر ڈوگر مد مقابل آئیں گے، جبکہ انتخابی دنگل میں 3 گروپس میں مقابلہ ہوگا۔ 2534 ممبرز اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پریس کلب انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ صدارت کے لیے جرنلسٹ گروپ سے ارشد انصاری، پروگریسو گروپ سے عبدالمجید ساجد اور گرینڈ الائنس سے بابر ڈوگر امیدوار ہوں گے۔ سینئر نائب صدر کے لیے جرنلسٹ گروپ سے جاوید فاروقی، پروگریسو سے انصار زاہد، گرینڈ الائنس سے امجد فاروق قلو، نائب صدر کے لیے جرنلسٹ سے سلمان قریشی، پروگریسو گروپ سے احسان بھٹی اور گرینڈ الائنس سے میاں افضل امیدوار ہیں۔ سیکریٹری کے لیے جرنلسٹ سے
जाहिद चौधरी, प्रोग्रेसिव से जाहिद आबिद और ग्रैंड अलायंस से हसनैन ताहिर उम्मीदवार हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जर्नलिस्ट है ख्वाजा नसीर, प्रोग्रेसिव से शाहनवाज राना और ग्रैंड अलायंस से बिलाल गौरी उम्मीदवार हैं। खजांची की नशिस्त की बात की जाए तो खजांची के लिए जर्नलिस्ट से जाहिद शेरवानी, प्रोग्रेसिव ग्रुप से शकील सईद और ग्रैंड अलायंस से अहमद रजा उम्मीदवार हैं। गवर्निंग बॉडी की 9 नशिस्तों के लिए जर्नलिस्ट ने इमरान शेख, इमरान अली खान, फौजिया गनी, रिजवान शमसी, फारूक चौधरी, शहजाद मलिक, इकबाल खान, आसिम, जावेद कंबो और एजाज जॉर्ज को मैदान में उतारा है। प्रोग्रेसिव की जानिब से गवर्निंग बॉडी के लिए मेहर तैमूर, असद जाफरी, नफीस कादरी, शेर अली खालती, हुमा मीर, एजाज भट्ट, आसिम अमीन, हसनैन चौधरी और नईम अख्तर उम्मीदवार हैं। ग्रैंड अलायंस से आलिया खान, मियां इफ्तिखार अल हसन, रियाज टॉक, शाहबाज काजमी, कैसर मुगल, मोहसिन अकरम, चौधरी फारूक यूसुफ और एजाज हुसैन गवर्निंग बॉडी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कई दीगर उम्मीदवार मुख्तलिफ ओहदों के लिए आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और कांटे का मुकाबला अब देखा जा रहा है। 3 बड़ी जमातें आपस में मद्दे मुकाबल हैं और इससे कबल की बात की जाए तो अरशद अंसारी सदारत की नशिस्त पर बराजमान रहे हैं और अब उनके मद्दे मुकाबले अब्दुल मजीद साजिद और बाबर डोगर हैं। एक बार फिर वो मैदान में कूदे हैं और आपस में मद्दे मुकाबल हैं और सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल अब कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में वोटर्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त था और सुबह आते हुए बहुत सी मुश्किलात भी दरपेश थी। मौसमी मुश्किल खास तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन वोटर्स का टर्नआउट भी ज्यादा मुतवक्के है और वोटर्स का कहना है कि हम बेहतर तरीके से अपने लिए एक बेहतर क़यादत का इंतखाब करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारे लिए हालात बहुत साजगार होंगे। आपको बता रहे हैं कि आज लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात का दंगल सज किया है। मोहसिन अलवी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। क्या वोटर्स आना शुरू हो चुके हैं और उनके जोशो खरोश के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मोहसिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके जोशो खरोश के हवाले से भी आगाह करें। इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। आज सुबह से ही गहमा गहमी का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज मौसम बहुत सर्द है, बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद मरकब में भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी मौजूद है जो आज के इलेक्शन में अपने इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करेंगे। 2500 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3 मुख्तलिफ पैनल एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के दरमियान जो है कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। आज सुबह से वोटिंग का अमल जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। इस दौरान जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटरों को कायल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में साफ़ी मौजूद हैं। दाखिला गेट से लेके अंदर जाने तक जगह जगह तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके वोटर यहाँ पर खड़े हैं, सपोर्टर खड़े हैं जो आने वालों को अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोट जो है कास्ट करने के लिए कायल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जुबैर हमारे साथ आप आइएगा, ये गहमा गहमी आप भी सुबह से देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन किसी तरह से हमें जोशो खरोश में कमी नजर नहीं आ रही। देखिए मोहसिन, बारिश ने और मौसम ने जो है वो प्रेस क्लब के इलेक्शन का जो मजा है वो दोबारा कर दिया है। सर्दी की शिद्दत भी है और बारिश में जो है इसका फायदा ये होगा कि फॉग में कमी आएगी। जो हमारे साफी भाई अभी तक पहुंचे नहीं है वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। और ये बताएं कितना फायदा होता है प्रेस क्लब के इलेक्शन का एक सहाफी को? देखिए, प्रेस क्लब के इलेक्शन का अल्टीमेट फायदा जो है वो सहाफी बरादरी को ही होता है। गो के सहाफी जो है डिफरेंट ग्रुप्स जो है आपस में इलेक्शन जो है वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो फायदा है वो सहाफी का है, क्योंकि जो भी बॉडी इलेक्ट होकर सामने आएगी उसने सहाफियों के लिए फायदा करना है। और अल्टीमेटली जो है हमारी जो सपोर्ट और वोट है वो सलमान कुरैशी के लिए है। हमारे कोलीग भी हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर सलमान कुरैशी जो हैं वो नायब सदर के उम्मीदवार हैं लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में। इससे पहले भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे। सलमान, पहले तो बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो क्या विजन लेके आप आए हैं, क्या करेंगे? मोहसिन, पहले तो दिलों से नफरतें ख़त्म करनी है। ये इलेक्शन है, ये फेस्टिवल के तौर पे इसे लेना चाहिए
इसे ग्रुप बंदियों में करके लोगों के दिलों में नफरतें डाल दी गई हैं जो सारा साल एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बढ़ती रहती है। और मेरी काफ़ी हद तक कोशिश है, मैं 2 साल पहले बॉडी में रहा हूँ, गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ, लेकिन उस वक्त इक़्तिदार में नहीं था, जर्नलिस्ट ग्रुप प्रोग्रेसिव था, लेकिन मैंने तब भी कोशिश की कि एक किया जाए। जब हम एक हो जाएंगे तो तब हम ताकतवर होंगे, तब हम मजबूत होंगे और तब हम एक दूसरे का एहसास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि एक करना है, दिल से नफरतें ख़त्म करनी है और सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब में तमाम लोग मुत्तफिक हैं। हमारी ट्रेड यूनियन तो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई हैं क्योंकि ग्रुप बंदी हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक हैं। तो मेरा इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहला काम ये है कि लोगों को, सहाफ़ियों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना है और इनके दिलों में जो हैं बातें उनको निकाल बाहर करना है। इंशाअल्लाह ताला वोटर्स बता रहे हैं, जर्नलिस्ट ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है और जर्नलिस्ट ग्रुप ने हमेशा काम किया है, वो सहाफ़ी कॉलोनी हो या नौजवान नस्ल के लिए फ़ेज़ 2 जो 2012 से 2015-17 तक जो मेंबर्स बने हैं उनके लिए देख रहे हैं आप किस तरह वोटर्स की एक बड़ी तादाद आ रही है। 3 ग्रुप्स, एक बड़ी अहम बात है कि इस बार 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि 2 ग्रुप लेते हैं, प्रोग्रेसिव और हमारा जो जर्नलिस्ट ग्रुप है और प्रोग्रेसिव, लेकिन अब फ्रेंड्स ग्रुप एक बना है जिन्होंने डेमोक्रेट ग्रुप के साथ अलायंस कर लिया है। बिल्कुल ग्रुप्स मद्दे मुकाबिल हैं। मोहसिन, सलमान से ही जानिए और गैर जानिबदाराना राय लीजिए कि इस बार किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? कि लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन जो है अभी शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जो है जारी रहेगा। अभी बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई जिसकी वजह से लोग जो है अंदर चले गए हैं और लेकिन इसके बावजूद वोटिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। लोग अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई है, उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है मोहसिन, जैसा कि इससे कबल सलमान आपके साथ थे, हम जानना चाह रहे थे इस हवाले से आप राय दीजिए, बल्कि आपसे भी हम राय लेंगे। और प्रेस क्लब के इंतखाबात जोरों शोर से जारी हैं, मौसम आड़े आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वोटर्स के जज्बात अपनी जानिब मुकम्मल हैं और वो बिल्कुल आना शुरू हो चुके हैं। जौक दर जौक आमद का सिलसिला भी जारी है और वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2534 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इंतखाब करेंगे अपनी पसंद की क़यादत का। इससे कबल भी सदारत पर अरशद अंसारी बराजमान रहे हैं, उनकी पार्टी ने रूल किया है और कोशिश की है कि प्रेस क्लब के हालात बेहतर किए जाएं, सहाफती कम्युनिटी उनके लिए भी मुश्किलात जो हैं उनका इजाला किया जाए। फिर से रुख कर लेते हैं मोहसिन अलवी की जानिब। जी मोहसिन, बताएगा कि इस बार वोटर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है? यहाँ देखने में आ रहा है कि कौन सी पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं? जी बिल्कुल, बहुत यहाँ पर बड़ी तादाद में साफ्ती बरादरी से लोग मौजूद हैं जो अपने अपना वोट कास्ट करेंगे अपने पसंदीदा। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात का दंगल सच गया है। जर्नलिस्ट पैनल, प्रोग्रेसिव पैनल, फ्रेंड्स कैंडल लाइन्स में कांटेदार मुकाबला जारी है। सदारती नशिस्त पर अरशद अंसारी, अब्दुल मजीद साजिद, बाबर डोगर मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि ये 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इंतखाबी दंगल में 3 ग्रुप्स में मुकाबला है। 2534 मेंबर्स अपने वोट कास्ट करेंगे, जबकि प्रेस क्लब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तीनों प्रोग्रेसिव ग्रुप्स में हामी और उम्मीदवार पुरजोश हैं। फिर से एक दफा रुख कर लेते हैं मोहसिन अलवी की जानिब। जी मोहसिन, बताएगा कि किस उम्मीदवार के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं? बिल्कुल 3 ग्रुप इस बार मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मुकाबला जो है यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 2 ग्रुपों के दरमियान है, जिसमें जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव पैनल जो है उनके दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों ग्रुप जो है वो भारी नजर आते हैं और दोनों के दरमियान ही असल मुकाबला देखा जा रहा है। तमाम साफ्ती बरादरी जो है उनका ज़्यादातर ताल्लुक इन 2 ग्रुपों के साथ है। पिछले 2 सालों से जर्नलिस्ट पैनल जो है यहाँ पर बरसर इक़्तिदार है लाहौर प्रेस क्लब के अंदर। अरशद अंसारी बतौर सदर 2 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस बार फिर वो सदर के उम्मीदवार हैं, उनके साथ सलमान कुरैशी नायब सदर के उम्मीदवार हैं। 9 रुकन गवर्निंग बॉडी के एक पूरा पैनल दिया गया जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से और प्रोग्रेसिव ग्रुप की जानिब से अब्दुल मजीद साजिद सदर के उम्मीदवार हैं, जो इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। वो इस बार सदर की नशिस्त के ऊपर प्रोग्रेसिव पैनल की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो वाज़ेह तौर पर नजर यही आ रहा है कि ये 2 ग्रुपों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। शाम को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दोनों ग्रुप उम्मीदवार और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश
और पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करेगा। लाहौर प्रेस क्लब के जो इंतखाबात हैं वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक अहमियत रखते हैं। जितनी भी सहाफ़ती बरादरी है उनके कंसर्न यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब से होते हैं। बुनियादी इनकी रुकनीत जो है वो बुनियादी चीज़ तस्वुर की जाती है किसी भी सहाफ़ी के लिए। तो जो इसके इलेक्शन है ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर प्रेस क्लब एक बड़ा प्रेस क्लब है। सहाफ़ी जो है उनकी नुमाइंदा जगह है, नुमाइंदा तंजीम है। तो ये बताइएगा कि बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, इस हवाले से ये बताएं कि लास्ट टाइम की निस्बत इस टाइम वोटर्स टर्नआउट के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ज्यादा होगा या कम होगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बारिश है, मौसम सर्द है, लेकिन इसके बावजूद वोटर टर्नआउट जो है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। उसी तसलसल के साथ लोग आ रहे हैं जिस तरह पहले गहमा गहमी में देखते थे। ज़ुबैर साजिद जिल्लू भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन के अंदर वो भी कवर करते रहे और यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी उन्होंने अपना भी वोट कास्ट किया है। ज़ुबैर, ये बताइएगा क्या उम्मीदें लेके आता है ये जर्नलिस्ट, ये जो सहाफ़ियों के लिए जो इलेक्शन है इसके नताइज किस कदर हौसला अफजा होते हैं, क्या मिलता है सहाफ़ियों को, क्या फ़ायदा है इसका? देखिए मोहसिन, इस प्रेस क्लब के इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैंने पहले भी की कि इलेक्शन जोन सा मर्जी ग्रुप जीते, एंड पे जो फ़ायदा है वो एक सहाफ़ी को होना चाहिए। इलेक्शन जो है ये एक होता है मुख्तलिफ 3 किस्म के जो अब ग्रुप्स जो हैं आपस में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो हर ग्रुप यही कह रहा है कि हम जो है कोई फ़ायदा देंगे, सहाफ़ी कॉलोनी का फ़ायदा दे दें। कोई कहेगा जी हमने डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई कह रहा है जी हम इसका मेडिकल बढ़ाएंगे, कोई कहता है जी हम शिमला पहाड़ी को मज़ीद ऊंचा करेंगे, तो वो पहले पहाड़ी बहुत ऊंची है। मकसद ये है कि सहाफ़ी को फ़ायदा पहुँचे, होना ये चाहिए। मेरी ये सजेशन है, पहले भी इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात हो चुकी है कि प्रेस क्लब का मकसद ये है कि एक क्लब है, जितने भी सहाफ़ी हैं, जब लाहौर प्रेस क्लब है तो लाहौर के जितने सहाफ़ी हैं उनके लिए क्लब है, एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी है, एक फ्रेशमेंट का ज़रिया है। सहाफ़ी सारा दिन जॉब करता है, फील्ड के लोग जो हैं वो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के लोग जो हैं वो ऑफिस में काम करते हैं, न्यूज़ रूम के लोग काम करते हैं। शाम को जो है एक सहाफ़ी को कट हो जाता है क्लब में, तो लोग एक दूसरे से गपशप करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि होना ये चाहिए कि जो प्रेस क्लब का कल्चर है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली इन सेंस ये आनी चाहिए कि फैमिली ओरिएंटेड जो है क्लब होना चाहिए। अभी तक जो क्लब की पहले एक वक्त था कि सहाफ़ियों कॉलोनी में जो है लाहौर प्रेस क्लब में फैमिलीज़ भी आती थी, ख़वातीन की एक तादाद भी विज़िट करती होती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। सिर्फ मेल लोग आते हैं, वो अपना कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई स्नोकर खेल रहा है, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हैं। तो जो भी पैनल ये काम करेगा, जो भी पैनल जीतेगा, सहाफ़ी को फ़ायदा होगा, और जो पैनल ये काम करेगा कि फैमिली को ट्रेंड सेट करेगा कि फैमिलीज़ के लिए ये जगह बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब फैमिली की मूवमेंट इस तरफ होगी तो क्लब को तकरीबन जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, इस बार थोड़ी हम बात करते हैं जितने भी ग्रुप यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मंशूर के ऊपर कि मंशूर क्या दिया जा रहा है। हम देखा कुछ चीज़ें कॉमन हैं सब ग्रुप्स के मंशूर के अंदर, जैसे कि आप बात कर लें सहाफ़ी कॉलोनी, प्लॉट, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि मुश्तरक हैं। आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी ग्रुप के मंशूर के अंदर कि हम आपके लिए सहाफ़ियों के लिए जो उनका बुनियादी हक़ है कि उनको रिहाइश दी जाए, प्लॉट दिए जाएँ जैसे कि पहले मिलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों ने इसके लिए कोशिश की, जर्नलिस्ट पैनल इसके लिए कोशिश कर रहा है, प्रोग्रेसिव भी कोशिश करते हैं। तो ये कितना अहम फैक्टर है इस इलेक्शन के मंशूर के अंदर? देखिए, ये मंशूर सबसे अहम फैक्टर है। अब मैं एक पार्टी का मैंने मंशूर पढ़ा कि हम शिमला पहाड़ी को मजीद ऊंचा करेंगे। अब शिमला पहाड़ी को आप ऊंचा कर लें, नीचा कर लें, सहाफ़ी को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सहाफ़ी को फ़र्क पड़ेगा कि आप उसको रिलीफ कितना दे रहे हैं, उसकी फैमिली को रिलीफ कितना दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी कितनी दे रहे हैं, उसको मेडिकल अलाउंस कितना दे रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई जॉब लेस हो जाता है तो क्या प्रेस क्लब जो है उसे किस हद तक सपोर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हर ग्रुप के तकरीबन आलमोस्ट मंशूर सेम ही है। अल्टीमेट ये है कि जैसे परवेज़ इलाही के दौर में जो है सहाफ़ियों को प्लॉट दिए गए, तो अब ये सूरत हाल है कि जितनी भी गवर्नमेंट आ रही, हर सहाफ़ी जो भी सदर आता है वो कोशिश करता है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मामला तय पाए जाएं और जो सहाफ़ी कॉलोनी जो है पहले है उसको डेवलपमेंट किया जाए, और फेज़ 2 के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अब गुज़श्ता जो बॉडी थी उन्होंने कोशिश की, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को सहाफ़ी कॉलोनी का दौरा करवाया, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए सारा विजिट किया, उसके बाद फंड भी जारी किए, और ये अच्छी काविश थी। हम ये नहीं कहेंगे जी उस ग्रुप ने काम किया तो उसी को वोट दें, ठीक है, अल्टीमेट फ़ायदा सहाफ़ी को है। अच्छा ज़ुबैर, इसमें हम बात करते हैं, ये देखें जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, जो न्यूज़ रूम के अंदर लोग काम करते हैं, फील्ड के अंदर काम करते हैं, उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा आप समझते हैं मिल सकता है? जो जिसको ये आप कह सकते हैं कि वो वर्कर लेवल का सहाफ़ी है, वो नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करता है, वो रोज़ाना प्रेस क्लब तो नहीं आता है और उसकी इतनी सिटिंग भी नहीं है,
आप समझते हैं उनके लिए भी कुछ निकलेगा इस इलेक्शन में? कोई भी ग्रुप आए, जो भी आए, साफियों की फलाह बहबूद के लिए काम करे, सबको मंशूर तो यही हमें नजर आ रहा है। उनके लिए भी कोई पोर्शन है, कुछ मिलेगा उनको के लिए बिल्कुल फायदा जी। जैसे भी हमने बात की कि जो उनकी फलाह बहबूद है, मसले मसाइल होते हैं, हमारे रिपोर्टर्स के बीट के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं जहाँ पर हमें अपनी सहाफ़ती बरादरी जो है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप उनके साथ खड़ा हों, क्रॉस द बोर्ड खड़े हों, किसी भी ग्रुप के साथ अपने इलाक़ से हट के। देखें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये जो हमारा वो तबका है, जो कैमरामैन हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, ऑफिस के लोग हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ज़्यादा प्रेस क्लब से, ज़्यादा टाइम ही नहीं है उनके पास आने का क्लब में, उनका फ़ायदा होना चाहिए। एक तो वो एक पूरा एक एरिया है साफ़ियों का जो रोज़ाना प्रेस क्लब आते हैं, वहाँ पे खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, गपशप भी करते हैं। तो ये सहूलत है जो रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती है। देखें, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा खाने का ये है कि सब्सिडी मिलती है। एक आम साफ़ी, अगर कोई साफ़ी किसी दूसरे शहर का है तो वो इस शहर में रहता है तो उसके लिए लाहौर में खाना अफोर्ड करना मुश्किल है, जितनी उसकी तनख्वाह है, जो उसके रिसोर्सेज हैं। प्रेस क्लब जो है वो एक सब्सिडी के ऊपर खाना दे रहा है, जो कि फ़ायदा हो रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है, हो सकता है उससे सबसे बड़ा, कि मेडिकल का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई बीमार हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी का फैमिली मेम्बर को बीमार होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर से रब्ता कर सकता है, प्रेस क्लब आ सकता है, उनको जो है मेडिकल अलाउंस भी मिल सकता है। ठीक है ज़ुबैर, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो साफ़ी बरादरी का हम देख रहे हैं वो ये है कि जर्नलिस्ट रिस्पेक्ट, एक साफ़ी की जो इज्जत है, ठीक है मोहसिन अली, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का दंगल सज चुका है और कांटेदार मुकाबला जारी है। प्रेस क्लब इंतखाबात उरूज पर हैं, वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है और टर्नआउट पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम रखना डाल रहा है।